Welcome back, guys. You are watching YouTube channel that is Engineering Civil Academy. In our previous part of the fluid mechanics, we have discussed some properties of the fluids, and now the balance properties will be discussed in this video. So, starting with our next property, that is compressibility of the fluid. So, in fluids, we are basically dealing with the liquids and gases, right? So, first we are starting with the liquids. That is compressibility of the liquids. Okay, it is basically denoted by beta, and we know that the compressibility is inverse of bulk modulus of elasticity, which is denoted by k. So I can write that beta is equals to 1 upon k, right? So what is k? K is bulk modulus. So it is written as change in pressure to the, it is the ratio of change in pressure to the volumetric strain with the negative sign. That is, it is change in pressure to the volumetric strain. This is what we learn in our solid mechanics, that is strength of material. So K is change in pressure to the volumetric strain with the negative sign in front. So put the value of K in this, you will get your compressibility, that is beta. So the denominator will come on the numerator side. It will become minus delta V upon V into delta P, or upon delta P. This is your compressibility. So as we are assuming that the mass is of the system is constant, so what is mass? Mass is density into volume, which is constant. So what if we will do, we will partial this differentiate तो इसके बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी डेल्टा वी अपॉन वी इस इक्वेशन से, ठीक है। वो अगर आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास बीटा आ जाएगा 1 अपॉन रो इंटू डी रो अपॉन डी पी। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है कैसा है, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आप सर्च करना, दैट इज वाई या हाउ वाटर इज ट्रीटेड एज इनकम्प्रेसिबल इन फ्लूइड मैकेनिक्स। तो वहाँ पे आपको इजीली वो वीडियो मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब के चैनल पे। सो वी आर यूजिंग डायरेक्ट रिलेशन। इसके बाद आप अगर इक्वेशन में देखोगे, that is rho, what is rho? Rho is the density and P is pressure. So we can say that the density, that is density changes with change in pressure, because it is d rho upon dp basically implies this only, that is d rho upon dp means that is density changes with change in pressure. So if we're talking about liquid, we are assuming that our standard fluid is water. So in case of water, we do one experiment that at pressure P1, suppose P1 is 1 atmospheric pressure, your density is rho 1 is around 998 kg per meter cube. Similarly at pressure P2, that is at 1000 atm, if you are increasing the pressure to 1 to 100 atm, naturally your density will increases, but very slightly, which is
1003 kg per मीटर क्यूब। तो अगर आप ये इसमें पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट दिस in equation number 1, you will get बीटा। तो व्हाट इज बीटा? बीटा बेसिकली इंप्लाइज कंप्रेसिबिलिटी। तो आपको कंप्रेसिबिलिटी पता लग जाएगी लिक्विड में वाटर की कितनी होती है, दैट इज विद चेंज इन प्रेशर हाउ डेंसिटी चेंजेस, दैट इज योर कंप्रेसिबिलिटी। तो उससे आपको कंप्रेसिबिलिटी मिल जाएगी। इस केस में आपको बीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मिलेगी 5.06 इंटू 10⁻⁻5। अगर आपको डिटेल में इसकी कैलकुलेशन समझनी है कैसे आया, वही उसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा, राइट। तो अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो बीटा इज क्लोजली वी कैन राइट इट एज 0 because 10⁻⁻5 is very less. So I can say that liquids, particularly water, are treated as incompressible because beta is nearly equal to 0. So that is why we are taking water as incompressible, or generally fluids are taking as incompressible. So next part is your not fluids, only liquids. Next part is our gases, compressibility of gases. तो गैस के केस में we know the ideal gas equation, that is P is equals to rho RT. तो P क्या है? प्रेशर, एंड रो क्या है? डेंसिटी। तो आई कैन से दैट P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। तो बेसिकली व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स विद इंक्रीज इन प्रेशर, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो प्रोपोर्शनेटली आपको रो भी इंक्रीज कर रहा है। बेसिकली अगर पी इंक्रीज कर रहा है तो रो इंक्रीज कर रहा है, तो आपका जो कंप्रेसिबिलिटी है वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो आई कैन से दैट विद इंक्रीज इन प्रेशर योर डेंसिटी इंक्रीजेज इन केस ऑफ गैसेस, दैट इज with increase in pressure density of gases increase। ठीक है। However, one point is to be remembered that if Mach number, what is Mach number? It is represented by U. It is the velocity of object to the velocity of sound। तो अगर आपका Mach number less than equals to 0.3 है, then in that case we are treating gases are incompressible। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इफ मैक नंबर इज लेस देन 0.3 देन gases are treated as incompressible। okay, basically what is mu? U, sorry, it is Mach number। ठीक है, it is to be remembered। okay, this is all about the compressibility of the fluids, and next topic is our isothermal compressibility of gases। right, so basically isothermal compressibility of gas है क्या चीज? आइसोथर्मल आप प्रोसेस आपने पढ़ा होगा पहले। आइसोथर्मल प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर चेंज जीरो होता है। ठीक है, जिसमें डेल्टा टी आप गैस पे कोई भी वर्क डन करोगे तो गैस की जो इंटरनल एनर्जी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी हीट एनर्जी, सॉरी आप कह सकते हैं उसकी इंटरनल सिस्टम की जो टेम्परेचर है, इंटरनल सिस्टम का जो टेम्परेचर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दैट इज डेल्टा टी इज जीरो। ठीक है, मतलब हम अगर गैस को कंप्रेस करेंगे आइसोथर्मली, देन इन दैट केस देयर विल बी नो इंक्रीज इन द टेम्परेचर। So I will write it here that
if in isothermal compressibility of the gas, temperature of the internal system remains constant। इसमें बेसिकली हम जब कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करते हैं इतना स्लो करते हैं ताकि सिस्टम को सफिशिएंट टाइम मिल जाए हीट एक्सचेंज करने का सराउंडिंग के साथ, क्योंकि अगर आप वर्क डन कर रहे हो तो नेचुरली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है गैस मॉलिक्यूल्स की। वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिस्टम को सराउंडिंग को रिलीज करने के लिए टाइम चाहिए होता है। अगर आप स्लोली प्रेशर अप्लाई कर रहे हो बहुत स्लोली, ग्रेजुअली एंड वेरी स्लोली, तो सिस्टम को टाइम मिल जाता है हीट एक्सचेंज करने का विद सराउंडिंग। तो सो दैट its initial and final temperature remains constant, hence delta T will be is equal to 0, but that is not happens in case of adiabatic compressibility of the gas. We will discuss it in the next part. तो इसमें बेसिकली आपका जो इक्वेशन रहता है वो है स्टैंडर्ड d rho upon dp. So we know that p is equals to rho rt, and in this case we have already assumed that, or it is already है ना in the equation in the topic that it is isothermal compressibility, so temperature is constant। ठीक है, तो basically R is also constant, it is depend on the type of the gas, so P is directly proportional to P only। so P, if P is equals to rho RT, so, just differentiate it with respect to rho। तो अगर आप इसको रो के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ रो वेरिएबल है, आर टी तो कांस्टेंट है, तो ये क्या रह जाएगा, सिर्फ आर टी रह जाएगा, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। बेसिकली आप क्या करोगे, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर और 2 दोनों को अगर रिलेट करोगे, क्योंकि यहाँ पे डी रो अपॉन डी पी है और यहाँ पे डी पी अपॉन डी रो है, तो अगर आप इसका इन्वर्स करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, डी रो अपॉन डी पी मिल जाएगा, वो कितना हो जाएगा 1 अपॉन आर टी। तो पुट दिस वैल्यू इन, पुट इट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आप डी रो अपॉन डी पी 1 अपॉन आर टी करोगे तो बीटा क्या बन जाएगा, बीटा इज 1 अपॉन रो आर टी। बेसिकली रो आर टी क्या चीज़ है, पी है, पी इज इक्वल टू रो आर टी। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जो कंप्रेसिबिलिटी आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी किस पे डिपेंडेंट हो जाएगी, इनवर्स ऑफ प्रेशर। बीटा इज 1 अपॉन, सिंस बीटा इज इनवर्स, सॉरी बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के, तो बल्क मॉडुलस कितना हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो इनवर्सली वेरी करता है कंप्रेसिबिलिटी के साथ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट conclusion we have drawn here, it is to be remembered। so the next part is adiabatic compressibility of the gases, right। so adiabatic compressibility basically क्या है कि we applied the pressure such that there will be no time available to the system to exchange the heat with the surrounding। तो जो भी आप वर्क कर रहे हो वो इंटरनल एनर्जी उसको इंक्रीज हो रही है उसके साथ वर्क डन के साथ, क्योंकि वर्क डन जब भी आप करते हो तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी कन्वर्ट तो होगी, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आप उस पर प्रेशर लगा रहे हो, आप गैस पे वर्क डन कर रहे हो, तो इसका मतलब वो वर्क डन कहीं तो जाएगा, तो वो बेसिकली उसकी हीट एनर्जी उसका इंटरनल टेम्परेचर रेज करेगा। ठीक है, तो बेसिकली आइडियाथर्मिक एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी में टेम्परेचर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होता है, वो इंटरनल एनर्जी में
कन्वर्ट होके उसका टेम्परेचर उसको रेज करवा देता है, ठीक है। सो वी विल राइट इट हियर दैट in this process temperature of system does not remain constant. In fact, it will be increased, ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये बता दिया। तो इसमें अगर आप रिलेशन ड्राइव करोगे तो इसमें बेसिकली एडियाबेटिक की इक्वेशन क्या होती है, पीवी रेस्ट पावर गामा इज कांस्टेंट। सो ये रिलेशन यूज करके आप रिजल्ट निकाल सकते हो बीटा एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। एडियाबेटिक लिख दिया यहाँ पे, बीटा एडियाबेटिक, यहाँ पे आइसोथर्मल लिख दिया, के आइसोथर्मल, ठीक है। यहाँ पे बीटा एडियाबेटिक, ये कितना हो जाएगा 1/गामा पी, ठीक है। और के इज इक्वल टू गामा पी। अगर आपको इसका डेरिवेशन आप समझना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में जाके एक बार आप मैसेज जरूर ड्रॉप कर दें, तो मैं आपको अलग से इसकी वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसका रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू द डिटेल्ड एनालिसिस। इसमें बेसिकली गामा क्या चीज़ है, गामा इज योर एडियाबेटिक इंडेक्स। तो ये डायरेक्टली कई बार आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस या एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस कितनी होती है, गामा पी दिया होगा, गामा दिया होगा, पी दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, तो आपको सही ऑप्शन चूज करके उसको मार्क करना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर compressibility of the gas. So next topic is our viscosity, which is very important topic. What is viscosity? Viscosity basically, I can write it here that two the two adjacent layers of fluid tries to resist motion of each other, ठीक है। Such a property of fluid is termed as viscosity. बेसिकली क्या होता है, फ्लूइड फ्लो में जो लेयर्स हम यही मान के चलते हैं, लेयर्स में फ्लूइड फ्लो होता है, एन नंबर ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं। तो एक लेयर के ऊपर जो अबव लेयर मूव कर रही है, वो ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर क्या करती है, रेजिस्ट करती है उसका मोशन। तो बेसिकली क्या ये इंड्यूस कर रहे हैं, इंटरनल फ्रिक्शन इंड्यूस कर रहे हैं। विस्कोसिटी इज बेसिकली अ इंटरनल फ्रिक्शन। बेसिकली उनके मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको मूव करने नहीं देते, तो बेसिकली दे आर रेजिस्टिंग देयर मोशन every fluid particles, that is because of their inter particle force of attraction. So I can write it here that basic cause of viscosity is cohesion, ठीक है। So it is important, it is to be remembered. Cohesion basically it is the interparticle force between the water molecules. तो अगर आप फ्लूइड फ्लो देखेंगे, आप एक इमेज में देख लेते हैं लाइक दिस।
In this image the fluid flow is in positive x direction, फ्लो हो रहा है फ्लूइड का। बेसिकली आप देखोगे जो फ्लूइड पार्टिकल्स बिल्कुल सरफेस के कांटेक्ट पे हैं, जो सरफेस के कांटेक्ट पे हैं, तो वो लेयर उसकी वेलोसिटी जीरो है। दैट मीन्स दिस द लेयर ऑफ फ्लूइड particles which is in contact with the surface is having zero relative velocity. Relative velocity means अगर जो सरफेस वो भी रेस्ट पे है तो फ्लूइड भी रेस्ट पे होगा। अगर सरफेस मूव कर रहा है तो उसको करो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो फ्लूइड की जो कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड होगी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी उनकी जीरो होगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो बेसिकली दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज नो स्लिप कंडीशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो बेसिकली इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं विच आर इन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, दे आर बीइंग सब्जेक्टेड टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो, relative velocity is zero as they are being subjected to the maximum shear stress, right? So this is also important. तो अगर आप देखोगे जो ये लेयर कांटेक्ट में है बिल्कुल डायरेक्टली, तो ये इस यहाँ पे शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है, और जो वेलोसिटी है रिलेटिव वेलोसिटी आर वी इज जीरो। और जैसे जैसे आप ट्रांसफर डायरेक्शन ऑफ फ्लो में बढ़ोगे, मतलब वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन की बात करें तो आप देखोगे शेयर स्ट्रेस इज डिक्रीजिंग, क्योंकि सरफेस तो नीचे ही है, ऊपर तो सरफेस नहीं है। तो धीरे धीरे अगर आप ऊपर की तरफ मूव करोगे तो क्या हो रहा है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, शेयर स्ट्रेस डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि फ्लो तो ऑलरेडी यहाँ पे हो ही रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। तो अगर आप ऊपर की तरफ मूव करोगे तो शेयर स्ट्रेस डिक्रीज कर रहा है, तो धीरे धीरे आप देखोगे वेलोसिटी जो है बढ़ रही है, यहाँ पे ज़्यादा है, फिर थर्ड लेयर में उससे ज़्यादा है, सपोज दीज आर द लेयर्स, एंड इसके बाद और ज़्यादा होगी। तो दिस इज योर वेलोसिटी प्रोफाइल, और यू कैन से देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, तो अगर आप दो लेयर्स में फ्लूइड पार्टिकल्स को एनालाइज करोगे लाइक दिस, आई हैव वन इमेज फॉर दैट। ठीक है, so this is we are analyzing two layers, that is at a distance y and at a distance y plus dy. So first layer we are taking at distance y from surface, and second layer at y plus dy from surface. तो अगर आप देखोगे जो एट ए डिस्टेंस y पे है ये वाली लेयर, तो इसमें वेलोसिटी v है, और जो इसके ऊपर वाली लेयर है एट ए डिस्टेंस y प्लस dy, ठीक है, y प्लस dy पे है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आ रही है वो v प्लस dv आ रही है, क्योंकि ज़्यादा आ रही है, क्योंकि shear stress डिक्रीज कर रही है along द y डायरेक्शन, ये ऑलरेडी हमने ऊपर देखा था। तो अगर आप इसका डिस्टेंस कवर देखोगे कितना कर रहा है इन dt टाइम, सो वी आर एनालाइजिंग
fluid movement between adjacent fluid particle between adjacent layers। ठीक है, तो हम टाइम ले लेते हैं इन dt टाइम, मतलब अगर वेलोसिटी जो नीचे वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी u है, तो dt टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कितना u इंटू डी टी या v dt, u ले लो चलो, ठीक है। और जो ऊपर वाली लेयर है वो कितना करेगी, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है वो थोड़ा सा ज़्यादा करेगी, u प्लस डी यू इंटू डी टी। ठीक है, बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कितना डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है, यहाँ पे आप निकाल लो, u प्लस डी यू इंटू डी टी माइनस कर दो u डी टी, तो ये अगर आप निकालोगे ये आपके पास आ जाएगा, ये कट जाएगा, डी यू इंटू डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ये वाला डिस्टेंस है, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ऊपर वाले पार्टिकल ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, डी यू इंटू डी टी। और बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये है डी वाई डिस्टेंस, इनके दोनों के लेयर के बीच में डिस्टेंस। और ये बेसिकली ये जो एंगल बना रहा है इसको हम थीटा कहते हैं, थीटा मान लेते हैं। बेसिकली थीटा है क्या चीज़, थीटा इज द एंगुलर डिफॉर्मेशन। पेज खत्म हो गया, पेज ऐड कर लेते हैं एक बार। बेसिकली थीटा क्या चीज़ है, थीटा इज योर एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपका एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो अगर आप बेसिकली थीटा, हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस, तो इसमें आर्क क्या हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल है तो इसको हम आर्क की फॉर्म में मान लेते हैं, है तो स्ट्रेट लाइन बट इसको आर्क मान लेते हैं। ये कितना आया था हमारे पास, ये आया था डी यू बाई सॉरी डी यू इंटू डी टू, आर्क इज डी यू इंटू डी टी। सिंस थीटा इज स्मॉल सो इट इज आल्सो टेकन एज डी थीटा, राइट, तो इट इज डी थीटा। तो रेडियस कितना है, ये डिस्टेंस डी वाई, ठीक है, ये डी वाई हो गया। तो बेसिकली डी थीटा इज इक्वल्स टू डी यू डी टी अपॉन डी वाई, और डी टी को इस वाली साइड में ले जाओ, तो डी थीटा अपॉन डी टी इसके बराबर आ जाएगा डी यू अपॉन डी वाई। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया है। तो डी थीटा बाई डी टी है क्या चीज़, बेसिकली इट इज रेट ऑफ shear डिफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ हमने ये रिलेशन निकाला है। और ये क्या चीज़ है, डी यू बाई डी वाई इज योर वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। बेसिकली ये रिलेशन निकालने का हमारा मोटिव क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट जो है उससे ये और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट इज योर न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, which is very important concept. So what does it say, it says that the shear stress between adjacent layers of fluids at a distance y from the surface is given as, that is tau shear stress is directly proportional to d theta upon dt, that is
this is your rate of shear deformation, that is shear stress, or I can say the shear stress SS is directly proportional to the rate of shear deformation SD. और अगर आप प्रोपोर्शनेटली अगर आप इसको रिमूव करते हो तो जो आएगा कांस्टेंट वो आता है म्यू, दैट इज डायनामिक विस्कोसिटी. व्हाट इज म्यू? म्यू इज योर डायनामिक विस्कोसिटी. ठीक है. सो ये जो कांस्टेंट है इट इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, इज नॉट, ये सारी नोट करें, इट इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट because it depends on temperature and pressure, right? Not pressure actually, it is only temperature, because dynamic viscosity is depends on the pressure, it is temperature only, so it is to be remembered. ठीक है. और इसमें एक हम और इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकालते हैं, दैट इज टो इज इक्वल टू म्यू इंटू डी थीटा अपॉन डी टी. और म्यू को अगर आप लिखोगे, म्यू क्या होता है? म्यू इज टो अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी. ठीक है. तो म्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साथ वेरी करता है रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन. ठीक है. और अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? डायनामिक विस्कोसिटी के. दैट मीन्स अगर आपका म्यू ज़्यादा है, अगर आपकी विस्कोसिटी ज़्यादा है और आपकी अगर इंटरनल फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो आपका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कम होने का मतलब फ्लो इज नॉट इजी. ठीक है. सिमिलरली अगर आप डायनेमिक विस्कोसिटी अगर कम कर दोगे, या जो भी लिक्विड है या फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी कम है, तो उस केस में डी थीटा बाई डी टी, अगर वो न्यूटोनियन फ्लूइड है, ठीक है, तो वो उसकी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी. उस केस में क्या होगा? फ्लो इज इजी. ठीक है. so what does it implies? It means that dynamic viscosity, that is mu dynamic viscosity it gives you direct parameter to measure or to compare internal resistance of the fluids, right? So this is very important concept. So this is all about your properties of fluids. तो इसमें एक दो प्रॉपर्टी और रहती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, लाइक सरफेस टेंशन एंड आल्सो हाउ द विस्कोसिटी वेरीज विद द टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है. वो नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर कर लेंगे. फिर उसके बाद हम अपना जो भी टॉपिक होगा वो शुरू करेंगे, लाइक प्रेशर मेजरमेंट एंड प्रेशर प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेज. ठीक है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you and thanks for watching.